Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. Our today's session is based on the text The Intrusion, a seminal short story by Sashi Deshpande. The word intrusion means invading into someone's private place without their consent. यानी कि बिना किसी के मर्जी के किसी के प्राइवेट प्लेस पे आपको इन्वेड करना है. That is intrusion. The story is about an unnamed narrator who represents all the women of our society in general and who goes through all the hardships of life, especially after marriage. So, जो हमारी narrator है, she is a female narrator है और unnamed है. उसका कोई नाम नहीं बताया हुआ है हमें. Simply एक married couple के बारे में story है and we know them as husband and wife. कोई नाम नहीं है. क्यों? बिकॉज राइटर जो है हमारी वो हमें इन जनरल बताना चाह रहे दैट कि इट इज द स्टोरी ऑफ ऑल द वुमेन्स. दैट इज व्हाई इट इज वी हैव द अननेम्ड नैरेटर. The story is about a newly married couple who is on their honeymoon and how the female is feeling uncomfortable. But this goes unnoticed by the husband and he just wants to get intimate with her. ये लोग अपने हनीमून में रहते हैं, हनीमून के लिए गए हुए रहते हैं एंड द फीमेल फर्स्ट वांट्स टू डेवलप अ इमोशनल रिलेशनशिप विद द हस्बैंड. उसको इमोशनली पहले कनेक्ट करना है, देन शी वांट्स टू गेट इंटीमेट. बट द हस्बैंड इज सो ईगर टू गेट इंटीमेट विद द फीमेल कि उनके सारे इशारे जो है फीमेल जो कर रही है वो सारे के सारे अननोटिस्ड जा रहे हैं. वो अननोटिस्ड. The wife keeps on resisting, but in the end, her privacy gets intruded, and thus our title draws its meaning intrusion, that is, invasion without consent. Marital rape is a common topic, yet not talked about openly. Through the text, we will see what a marital rape looks like and how it goes unheard. We will also see how the feeling of a woman in a society goes unnoticed and she has to live her life sometimes according to the society expectations. Marital rape जो concept है वो common concept नहीं है क्योंकि when you according to the Indian traditions if you are in a marriage आपके ऊपर आपके husband का right है. He can do whatever he wants to do with you and that is something people said कि ये bedroom talks है, don't openly talk about it. But this is the problem. तभी marital rapes होते हैं and it is not openly talked about. Now ये जो हमारा text है, it is a short story and it is written by Shashi Deshpande who is Indian feminist writer and born in 1938. In the text we will see the theme of patriarchy, consent, trauma, marriage and autonomy. Next, the narrative style. Let us discuss the narrative style first, then we will move to the text where we will read the text line by line. The text is written from first person narrative which gives a powerful intimate view of the narrator's trauma, how she is feeling. और first person narration है, किसी का कोई और voice हमें देखने को नहीं मिलता है. The story has a minimalist and quiet tone which reflects the internalized suffering of many women क्योंकि silence is the language of women कहीं ना कहीं तो वो हमें देखने को मिलता है. Short clipped sentences है to show the emotional restraint and repression because अगर आप emotionally hurt हो तो आप you are not able to frame long sentences to describe yourself. आप बहुत लंबे लंबी बातें नहीं करोगे तो short clipped sentences देखने को मिलेंगे और कोई melodrama नहीं है. ओवर एग्जरेट करके बढ़ा चढ़ा कर हमें चीजों को देखने को नहीं मिल रहा है. जस्ट सिंपल रॉ ट्रुथ जो है उसी के बारे में हमें देखने को मिलेगा. सो इट इज अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बाय अ न्यूली मैरिड वुमन हु रिफ्लेक्ट्स ऑन अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऑन हर वेडिंग नाइट. वो अपने पूरे लाइफ के बारे में बताएगी, उस पर्टिकुलर हनीमून फेज के बारे में बताएगी एंड दे आर द न्यूली मैरिड कपल. Her husband, a man she barely knows, forces himself on her, not through overt violence but through entitlement. जोर जबरदस्ती नहीं, वायलेंस करके नहीं उस पे करता है रेप, बट
थ्रू द एंटाइलमेंट, हक जमा के कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, ये मेरा राइट बनता है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल इंटीमेट हो सकता हूं. The story explores the emotional and psychological violation that follows, highlighting the silencing of women's voice and the normalized sexual oppression in marriage. कि मैरिज में भी सेक्सुअल ऑपरेशन होता है, वुमेन के वॉइस को कैसे साइलेंस कर दिया जाता है. साइकोलॉजिकल वायलेंस, जरूरी नहीं है कि आपका हर वायलेंस फिजिकल वायलेंस हो, मारपीट वाला वायलेंस हो. कभी कभी आपका साइकोलॉजिकल वो चीज इतना ज्यादा आपको अफेक्ट करता है कि आप उसको भूल नहीं पाते हो. एंड दिस स्टोरी इज समथिंग अबाउट दैट. सो द नैरेटर मैरीज अ मैन शी हार्डली नोस, यानी कि ये एक अरेंज्ड मैरिज की कहानी है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ अरेंज मैरिज हियर. देन what happens कि on the wedding night he claims his right, forcefully उसके साथ इंटीमेट हो जाता है. She feels violated, because of which she feels the mental intrusion, loss of autonomy, loss of her own self-respect, and the story focuses on the inner turmoil rather than the act itself. यहाँ पे वो फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात नहीं हो रहा है, बट वो फिजिकल इंटीमेसी का क्या अफेक्ट है उसके बारे में बात होता है. Later she tells him you shouldn't have done it, asserting herself. बाद में वो अपने लिए फाइट करती है, स्टैंड करती है, वो बोलती है तुमको ये नहीं करना चाहिए था. और हस्बैंड शॉक हो जाता है. ही नेवर थॉट ऑफ इट एज अ रेप और इंट्रूजन, बट उसके लिए इट वाज लाइक कि ये तो नॉर्मल है. वो उसको एज अ रेप और इंट्रूजन नहीं देख रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि एक फीमेल का लैंग्वेज और एक मेल का लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होता है. एंड द स्टोरी एंड्स विद द नैरेटर बिगिनिंग टू रिक्लेम हर वॉइस एंड द नेम द एक्सपीरियंस. इसमें आपको कुछ की थीम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैरिटल रेप, कंसेंट मैरिज में जरूरी होता है, पेट्रियार्की एंड एंटाइटलमेंट, क्योंकि उस मेल का ये माइंडसेट ही सेट कर दिया गया है कि आपको एक वेडिंग नाइट में यही करना है, अपने हनीमून में आपको यही करना है, तभी आप हस्बैंड एंड वाइफ कहलाओगे. तो पेट्रियार्की माइंडसेट देखने को मिलता है. साइलेंस एंड वॉइस देखने को मिलता है कि वुमेन हर बार जोर जबरदस्ती चीखती चिल्लाती नहीं है, कभी कभी वो चुप रह जाती है और उस वायलेशन को वो एक्सेप्ट कर लेती है कहीं ना कहीं. फीमेल ऑटोनॉमी देखने को मिलता है कि वुमेन के भी राइट्स होते हैं उनके बॉडी में, स्पेस में, आइडेंटिटी में, और इस पे किसी का हक नहीं बनता है, नॉट इवन द हस्बैंड. इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखने को मिलेंगे टेक्स्ट में, लाइक इंट्रूजन, साइलेंस एंड मैरिज बेड, क्योंकि मैरिज बेड एक ऐसा स्पेस है विच इज अ काफी इंटीमेट स्पेस, लेकिन यहाँ पे ही वो ट्रॉमा उसको मिला है वाइफ को. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इस टेक्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे. वी विल सी अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन द टेक्स्ट बिकॉज Deshpande doesn't use any dramatic language but subtle resistance. She highlights the emotional truth of countless women in patriarchal societies, especially within the marriage, and she brings out the topic of marital rape in the text. Basically, she is giving voice to a woman's trauma. वो woman के trauma के बारे में बात कर रही है, woman के perspective से बात कर रही है, जो कि text को एक feminist perspective के towards लेके जा रहा है. Now, to start with the text, this is the text. We will read the text line by line. The text starts, we looked blatantly out of place there. Tiny houses, almost miniature ones, but spick and span. हम लोग उस जगह को देख रहे थे. काफी छोटे छोटे घर है वहां पे, ऐसा लग रहा था कोई मिनिएचर खिलौना रख दिया है, लेकिन स्पीक एंड स्पैन थे वो. अ लिटिल पाथ सो नैरो दैट इफ वी स्ट्रेच्ड आवर आर्म्स वी कुड टच द हाउसेज ऑन बोथ साइड. और जो रास्ता है वो इतना सकरा नैरो सा रास्ता है कि अगर हम अपने हाथ फैलाए, स्ट्रेच करें अपने आर्म्स को, तो दोनों साइड के दीवारों को टच कर सकते हैं. ये सारी बातें हमें हमारी फीमेल नैरेटर बता रही है. She says, why had we come here? क्यों आए हम लोग? I walked stiffly, self-consciously, trying hard to be seem unaware of the
stairs, the curious eyes that followed us. ये बोल रही है कि मैं काफी stiffly कंफर्टेबल वॉक नहीं कर रही हूँ, सेल्फ कॉन्शियसली नहीं वॉक कर पा रही हूँ, और ट्राइंग हार्ड टू सीम अनअवेयर ऑफ द स्टेयर्स, और मैं उस स्टेयर्स से काफी घबरा रही हूँ जो मुझे देख रहे हैं रोड के लोग, क्यूरियस आइज की ये लोग क्या करने आए ये कपल. I wished I could turn around and stare back with the same frank curiosity, but all I could do was to peep covertly through the corners of my eyes. ये बोल रही है कि वो जैसे मुझे देख रहे जिस कॉन्फिडेंस के साथ, काश मैं भी उनको उसी कॉन्फिडेंस के साथ देख सकती और आंखें मिला सकती उनसे, और वो जो मेन मुझे देख रहे हैं लुंगीज में अपने फिशिंग नेट को लेके, मैं उनसे आंखें मिला सकती. तो कहीं ना कहीं ये एक फीमेल साइन होता है कि आपको कोई देख रहा होता है तो आप अल्टीमेटली अपनी नजरें झुका लेते हो, आपके अंदर वो बिल्ड इन नहीं होता आपका कि आप उनसे नजरें मिलाओ. तो ये वही बता रही है यहाँ पे. देन शी सेज men in checked lungis sitting at fishing nets, drying fish laid out in rows on poles, women with bold faces and gold ornaments, all the signs of a fishing village. She is basically giving us the description. जहां ये गए वहां पे इनको लोग दिख रहे, आदमी दिख रहे जो लुंगीज पहने हुए है, फिशिंग नेट लेके बैठे, मछलियां सूख रही है और पोल्स में लाइन वाइज सुखाई हुई है वो मछलियां. वुमेन जो है वो काफी बोल्ड फेस की हैं, बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने, और ये सब कुछ देख के मुझे पता चल रहा है कि ये एक फिशिंग विलेज है. हो सकता है आपको यहाँ का टेक्स्ट थोड़ा साइड का क्लियर ना नहीं हो, बट प्लीज मैनेज, यही पीडीएफ मिला मुझे. बट आई थॉट इफ दिस इज अ फिशिंग विलेज वेयर इज द सी. नैरेटर कह रही है मैं सोच रही हूँ कि अगर ये फिशिंग विलेज है तो समुद्र का है, क्योंकि फिशिंग विलेज में तो समुद्र का होना जरूरी है. एंड देन वी रीच द एंड ऑफ द लेन, turned right, and there suddenly enchantingly was the sea in front of us, immense and fascinating. हम लोग चल रहे थे, मैं ये सोच रही थी, और जैसे ही वो लेन खत्म हुआ हमने राइट लिया और हमारे सामने एकदम बड़ा सा सुंदर सा समुद्र था. And again rows and rows of fish hung up to dry, looking at us and at the blue of the sky with sightless accusing eyes. और वहां पे जो फिश है वो ड्राई करने के लिए सूखे हुए थे इस तरह से, तो इनकी आंखें जो थी वो स्काई को देख रही थी और ये पोल्स में सूखे हुए थे. I stopped and stared. He stopped too. यानी कि हस्बैंड यहाँ पे. And looked at me with a very slight impatience which aroused the faintest wisp of annoyance in me. मैं रुकी और मैं देखी और वो भी रुके और देखे, और मुझे एक उनके अंदर impatience दिखाई दिया जिसके कारण मेरे अंदर एक घबराहट पैदा हुई, annoyance in me. Then he beckoned to me with a friendly smile and I hurried on. और उन्होंने मुड़ के मेरे को एक फ्रेंडली सा स्माइल दिया और मैं जल्दी जल्दी चल के उनके पास गई. Then she says, no, we were walking on the sand, squelchy, oozing, almost black. The sea must have been here not long back. Now we were walking on the sand, squelchy. तो ये बोल रहे कि अब हम लोग, नैरेटर बता रही है कि अब हम लोग एक रेत वाली जगह पे चल रहे, क्योंकि सी के बगल में है, जो कि काफी गीला सा है, स्क्वेल्ची है, ऊजिंग है, ऑलमोस्ट ब्लैक, गंदा भी है. ऐसा लग रहा है कि अभी अभी समुद्र का पानी यहाँ से आके पीछे गया है, जो कि हाई टाइड के कारण होता है. आई फाउंड इट डिफिकल्ट वॉकिंग इन माई हाई हील्स. और मैंने हाई हील्स पहने थे और मुझे चलने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था उसमें. विथ माई हैवी साड़ी स्क्वैशिंग डैम्पली राउंड माई एंकल्स. और मैंने एक काफी भारी साड़ी पहन के रखा था जो कि जनरली मैरिड वुमेन्स पहनती है, और वो पानी के कारण नीचे से भीग गया था और वो मेरे पैरों में फंस रहा था, जिसके कारण मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रहा था. आई वॉज कॉन्शियस ऑफ एन अनरीजनेबल पैंग ऑफ इरिटेशन अगेंस्ट हिम. और मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि मेरी इन सब चीजों से उनको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है. एज दो सेंसिंग माई डिस्कम्फर्ट ही हेल्ड माई आर्म टू हेल्प मी. उनको लगा कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसीलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बट ऑकवर्डली टू टाइट. लेकिन वो काफी जोर से पकड़े हैं, एंड आई वांटेड टू प्रोटेस्ट. मैं
चाहती थी कि उनको बोलूं टू रिलीज माई आर्म फ्रॉम हिज कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रिप, कि छोड़ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, बट आई वॉन्ट इट। एक तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हमें पूरे टेक्स्ट में बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा दैट नैरेटर इज सेइंग आई वॉन्ट इट, बट वो कभी बोलती नहीं है, विच इज द साइन ऑफ सप्रेशन इन सोसाइटी। फिर ये बोल रही है द सी हैड लेफ्ट इनन्यूमरेबल शेल्स ऑन द शोर विच क्रंच्ड अंडर आवर फीट एंड आई बेंट डाउन टू पिक। वहां पे शीशल्स आए हुए थे, काफी सारे शीशल्स थे जो कि मेरे पैरों के नीचे लग रहे थे। मैंने झुक के कुछ उठाने का ट्राई किया क्योंकि किसको नहीं पसंद है शीशल। उसके बाद ये बता रही हैं शी शेल्स up one any excuse to loosen his hold on my arm। ये बोल रही है और मेरे लिए कोई भी एक्सक्यूज चलेगा जस्ट टू गेट लूजन फ्रॉम हिज होल्ड, क्योंकि वो काफी टाइट पकड़ के रखे हैं और मैं उनको मना नहीं कर पा रही हूं कि छोड़ दीजिए, इसीलिए कोई भी बहाना चलेगा उससे छुटकारा पाने के लिए। बट हॉरर्स, देयर वाज समथिंग अलाइव, और जैसे ही मैंने एक शेल उठाया कुछ भयानक, कुछ उस शेल के अंदर जिंदा था। समथिंग क्रॉलिंग इन द शेल एंड आई थ्रू इट अवे इन डिस्गस्ट एंड हरीड ऑन आफ्टर। और मैंने उसको फेंक दिया उस शेल को वहीं पे डर के, और मैं अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चली। नाउ थैंकफुली वी वेर आउट ऑफ द सैंड एंड बैक इन द विलेज। अब हम लोग रेत का रास्ता खत्म हो गया था, विलेज की रोड पे आ गए थे। बट अ विलेज दैट लुक्ड सो डिफरेंट, इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव इट वॉज द सेम। बट हमने पीछे जो विलेज देखा और अभी जो विलेज देख रहे हैं वो दोनों में काफी फर्क है। इट इज सो डिफरेंट, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि वही सेम जगह है। द पाथ्स वेयर ब्रॉडर, रास्ते अब काफी चौड़े हैं, एंड वेंट स्टीपली अपहिल, और खड़ी चढ़ाई है। देयर वेयर स्केर्सली एनी साइन ऑफ द सी, और मुझे वहां से समुद्र भी नहीं दिख रहा है। नो फिशिंग नेट, नो ड्राइड फिश। इंस्टेड there was the familiar lacy foliage of the drumstick tree outlined sharply against the sky। मुझे वहां पे ड्रमस्टिक्स के पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि है टंगे हुए हैं, जिसमें ड्रमस्टिक्स टंग रहे हैं पीसफुली फ्रॉम द ब्रांचेस। आई हैड नो टाइम टू लुक अराउंड, लेकिन मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से नोटिस करके नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो मेरा हस्बैंड है, जो मैन है मेरे साथ, वो काफी हरी में है, तो वो मुझे 2 मिनट रुक के कोई चीज एक्सपीरियंस भी नहीं करने दे रहा, विच इज शोइंग कि हस्बैंड को कितना इम्पेशंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फीमेल इज नॉट एबल टू एंजॉय इट। उसको रुक के देखने का मन है बट उसके फीलिंग्स को वहां कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। द मैन लोडेड विथ आवर न्यू एक्सपेंसिव सूटकेस, अगेन यहाँ पे उनके हस्बैंड की बात हो रही है, वॉज ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द हिल एंड आई हैड टू हरी। वो ऑलरेडी उस चढ़ाई के टॉप पे पहुंच चुके हैं और मुझे जल्दी जल्दी चल के जाना पड़ रहा है। टू स्टम्बल on uphill, panting, wishing now for the support I had earlier spurned। और मैं लड़खड़ा के चल रही हूँ, सांस फूल रही है मेरी, और मुझे अब वो सपोर्ट वापस चाहिए जो सी में मैं रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि वो काफी टाइट मेरा आर्म पकड़ के रखे थे। बट वो सपोर्ट देने के लिए वो हस्बैंड है ही नहीं वहां पे क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुका है। वी आर ऑलमोस्ट देयर, ये बोलती है कि हम लोग ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुके हैं जहां हमें होना चाहिए। वी आर ऑलमोस्ट देयर, ही सेड इनकरेजिंगली, एंड यस वी हैड लेफ्ट ऑल द हर्ट्स बिहाइंड अस। इसके हस्बैंड बोलते हैं हम लोग बस पहुंच ही गए हैं। वी वेंट अप अ स्टीप रॉकी पाथ लाइंड बाय बिग बोल्डर्स एंड सडनली वी वेर एट द टॉप। हम लोग वैसी ही एक रॉकी पाथ, उबड़ खाबड़ रास्ते पे चढ़ रहे, स्टीपी है, चढ़ाई है, और सडनली हम लोग एकदम टॉप पे पहुंच गए जहां पे अ स्क्वाट बिल्डिंग स्टेयर्ड एट अस ब्लैंकली। और वहां पे मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो कि स्क्वायर के शेप में है, और स्क्वाट यानी कि स्क्वाटिंग पोजीशन जो होता है, बैठा हुआ है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्डिंग मुझे घूर रहा है ब्लैंकली। माई हेयर ब्लू एनी हाउ एंड माई साड़ी बिगैन बिलोइंग इन टू ऑट। हवा काफी है क्योंकि ऊपर चढ़ाई में है ये जगह। मेरे बाल इधर उधर कैसे भी लहर रहे हैं, मेरी साड़ी इधर उधर लहर रही है और अगली शेप्स बना रही है, ऑड एंड अगली शेप्स। समवन केम फॉरवर्ड टू रिसीव अस। अब ये समवन वहां का केयर टेकर है, वेटर। केम फॉरवर्ड टू रिसीव अस एंड ओपनड वन ऑफ द रूम्स फॉर अस। आई सैंक ग्रेटफुली इनटू अ चेयर
easing my tired feet out of my slippers, too exhausted even to look around. और मैं जाते ही वहां पे चेयर पे बैठ गई और सबसे पहले जाके अपना चप्पल खोला और अपने टायर्ड फीट को आराम दे रही थी. मुझे उस टाइम पे ये नहीं है कि ये कमरा कैसा है, कैसा जगह है, मुझे ये सब नहीं दिख रहा है. आई वॉज सो टायर्ड. देन शी सेज, इसके हस्बैंड बोल रहे, isn't this nice? He asked me, beaming pleased with himself. और वो मेरे से पूछ रहे, कहीं क्या ये सुंदर नहीं है? All the signs of nervousness and irritation gone now that we had arrived. Yes, I said. अब वहां पे पहुंच गए हैं तो मुझे वो चेयर में बैठ के इतना अच्छा लग रहा है, रिलीफ लग रहा है. और उनको मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कैसा जगह नहीं है, बट आउट ऑफ टायर्डनेस मैंने जस्ट कह दिया, यस, इट इज लवली. It had the usual dullness and impersonality of any room where people stay for a short time and just go away, leaving no impress on themselves behind. इसने कहा कि काफी अच्छा जगह है, बट इसके असली मन की बात क्या है, दैट बाकी जगह की तरह ही है, यूजुअल डलनेस जैसा सब जगह होता है, कोई खास नहीं है कमरा. और इसमें लग रहा है कि वही लोग आते हैं जो कुछ टाइम के लिए रहते हैं और चले जाते हैं और अपना कोई भी इंप्रेशन छोड़ के नहीं जाते. आपको लगेगा भी नहीं कि इस कमरे में कोई आया था. जस्ट अ जंबल ऑफ स्टेल स्मेल्स, बस कुछ अजीब सा एक स्मेल रह जाता है पीछे. इवन आई स्निफ्ड सर्पिटिशियसली अ स्मेल ऑफ बेड बग्स. और मुझे कहीं ना कहीं खटमल का भी थोड़ा स्मेल आ रहा था, क्योंकि वो रूम लॉक्ड रहता है, उसमें कोई एयर नहीं है, कोई वो नहीं है. विंडो खोलेंगे तब तो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉक्ड रहता है, जिसके कारण काफी एक स्टिफी सा स्मेल है उसमें. द मैन फ्लंग ओपन द विंडोज एंड द ब्रीज रश्ड इन एट अस. और वो जो वेटर था उसने विंडो खोला और एक हवा आई और उसके कारण वो जो स्मेल था वो भी चला गया. डू यू वॉन्ट एनीथिंग, ही आस्क्ड. उसने पूछा कुछ चाहिए. यस, सम टी. इज दैट ऑल राइट? हाँ, चाय मिल जाएगी. वो बोलता है कि इज दैट ऑल, बस इतना ही चाहिए. मैंने नॉड किया, बोला हाँ. एंड द मैन वेंट आउट. और वो आदमी बाहर चला जाता है. दो व्हेन ही वॉज इन द रूम आई हैड लुक्ड अवे फ्रॉम हिम. वो रूम में भी था तो मैं उसे नजरें नहीं मिला रही थी. पेनफुली अवेयर ऑफ अ सीक्रेट स्माइल, अ स्मर्क ऑन हिज फेस दैट शोड एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट वी हैड कम हियर फॉर. क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं शाइनेस फील हो रहा था. मुझे पता है कि इस वेटर के चेहरे पे एक सीक्रेट स्माइल है, स्मर्क वाली हंसी है, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं. उसके कारण मुझे शाय फील हो रहा है. सडनली आई विश्ड ही हैड नॉट गॉन. वो जाता है पर मुझे, जब वो था तो मुझे लग रहा था कि वो चला जाए, बट वो चला गया तो अब मुझे लग रहा है कि उसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ही लेफ्ट बिहाइंड हिम अ पेनफुल साइलेंस. अब वहां पे मैं और मेरे हस्बैंड है खाली, और हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं, एक साइलेंस है, एन एम्बैरेसमेंट. और एक एम्बैरेसमेंट है उसके रहने से कम ये नहीं था वेटर के रहने से. तो ये सारी बातें ये कह रही हैं, अपनी मन की बात बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है उस सिचुएशन को, उस इवेंट को. देन शी सेज, embarrassment that occurs between two people who scarcely know each other, and I wondered wildly, desperately what we could talk about. और वो साइलेंस, वो एम्बैरेसमेंट था वहां पे, जो उन दो लोगों के बीच में आपको देखने को मिलेगा जो एक दूसरे को हार्डली जानते, स्केर्सली, बहुत कम जानते हैं. और सडनली मैं सोच रही हूँ कि what we could talk about, हम लोग क्या बात कर सकते हैं. as if the silence made him uneasy too. और इस साइलेंस से वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे. He began to move about the room whistling tunelessly. वो रूम में इधर उधर घूमने लगते हैं और सीटी बजा रहे, विसल कर रहे. ट्यूनलेसली, कोई ट्यून नहीं है, कुछ नहीं, बस आउट ऑफ ऑकवर्डनेस ही इज डूइंग दैट. देन ही सडनली बर्स्ट इनटू स्पीच. और वो अचानक से बोलते हैं, टेलिंग मी हाउ फॉर्चुनेट ही वाज टू गेट दिस प्लेस फॉर आवर हनीमून. कि वो लोग कितने लकी है कि उनको ये जगह मिल गया उनके हनीमून के लिए. व्हाट लक, ही सेड, कितना अच्छा किस्मत है. दैट one of the top executives who was to have come here had cancelled his visit at the last minute. जो टॉप एग्जीक्यूटिव जिसने बुक किया था, जो आने वाला था यहाँ पे, उसने लास्ट मिनट में कैंसिलेशन किया और हमें ये जगह मिल गया. ऑल बाय आवर सेल्फ, कंप्लीट प्रिवेसी, ही स्माइल्ड. और उसने एक स्माइल पास किया.
emphasizing the words and I felt suddenly completely sickened. और जिस तरह से वो मुझे बोले, कंप्लीट प्रिवेसी वर्ड पे जिस तरह से फोर्स डाल के बोले, वो सुन के मेरे में नर्वसनेस बढ़ने लगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी नर्वस हूँ और मेरे पे और वो नर्वसनेस बढ़ने लगी और मुझे लग रहा था मैं बीमार हो गई हूँ. ही वेंट ऑन अनअवेयर ऑफ माई फीलिंग्स. वो अपना बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रही हूँ. टेलिंग मी इट वॉज ओनली द लकी फ्यू हु कुड गेट दिस प्लेस टू स्टे. उनको नहीं पता चल रहा है कि मैं कितना घबराई हुई हूँ, मुझे कितना घबराहट फील हो रहा है, कुछ नहीं. उनको कोई मेरी फीलिंग्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है. और वो मुझे बता रहे हैं कि ये कितने लकी है, बहुत कम लोगों को ऐसा जगह मिलता है रहने के लिए, हमें मिल गया. ये सारी बातें वो कर रहे हैं और मेरे जो भी एक्सप्रेशंस है, मेरे इमोशंस है, सब अननोटिस्ड जा रहे हैं. Then she says, and then I began to wonder about these few and did they come here with their families. और वो जो ये कुछ लोगों के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं कि जो बहुत लकी होते हैं, जिनको ये जगह मिलता है, मैं सोच रही हूँ कि क्या वो अपने फैमिलीज के साथ यहाँ पे आते हैं. Somehow it didn't seem like a place where children had ever played and shouted. पर ये जगह मुझे लग नहीं रहा है कि कभी यहाँ पे बच्चों ने खेला है या कोई फैमिली के साथ आया होगा, क्योंकि ये एक काफी रोमांटिक सा हनीमून प्लेस है, तो यहाँ पे ज्यादातर कपल्स ही आते हैं. तो ये बोल रही कि मुझे नहीं लगता कि कभी किसी बच्चे ने यहाँ खेला है, चिल्लाया है, उनके पीछे उनकी मदर घूम रही है, पीछे पीछे चिल्ला रही है, एंग्शियस, नैगिंग. There was something furtive about the place, something deadpan about the servant face. इस जगह के बारे में कुछ तो अजीब है, इस सर्वेंट के चेहरे के बारे में कुछ तो अजीब है. which made me feel that the men who came here did so with other women. और वो जो हम लोग जिस चीज के लिए आए, अपने हनीमून के लिए, मुझे उस सर्वेंट का चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग भी जो यहाँ पे आते हैं वो इसी काम के लिए आते हैं. which made me feel that men who came here did so with other women. और जो भी आदमी यहाँ पे किसी भी औरत के साथ आता है वो यही काम करता है. और वो औरत भी हो सकती है, गर्ल्स भी हो सकती है, perhaps bold faced and experienced who would laugh and chat with the men. बेसिकली यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड वुमेन, वी कैन कंसिडर किसी प्रोस्टिट्यूट का बात हो रहा है यहाँ पे, वी कैन कंसिडर किसी ऐसे का बात हो रहा है कि जो प्री मेच्योरली काफी ज्यादा सेक्सुअल इंटीमेसी पे है. तो ये बोल रहे कि ऐसी भी लड़कियां आती होगी यहाँ पे जिनको आदमियों से बात करने आता है, मोर ओवर रिझाने आता है, लाफ करने आता है उनके साथ बैठ के, नॉट गो थ्रू वॉट आई वॉज इंड्योरिंग नाउ. और वो मेरे जैसा नहीं फील करती होगी जैसा मैं अभी फील कर रही हूँ, नर्वस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है. अब ये बताती ये कैसा फील कर रही है. फियर्स, ट्रेमर्स, द वे आई अवर्टेड माई फेस फ्रॉम द बेड्स. मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, और वो बेड जो रूम में है उसको देख के मुझे और घबराहट हो रही है. द शीट्स लुक्ड ग्रबी एंड द पिलो कवर्स डिस्टिंग्विशली ग्रीसी. शीट्स, जो बेडशीट बिछा हुआ है, काफी अच्छा नहीं है, ग्रबी सा, थोड़ा सा गंदा लग रहा है. पिलो जो है वो थोड़े ग्रीसी दिख रहे हैं, लग रहा है धुला हुआ नहीं है अच्छे से. टेल द मैन टू चेंज द कवर्स एंड शीट्स, आई वॉन्टेड टू से. मैं बोलना चाहती थी अपने हस्बैंड को कि वो वेटर को कह दीजिएगा कि वो ये सब बदल दे. फिर से यही स्टेटमेंट, आई वॉन्टेड टू से बट कुडेंट. लेकिन मैं बोल नहीं पाई. क्यों? क्योंकि वो ओपननेस ही नहीं है अभी इनके बीच में. पता नहीं इसके हस्बैंड को कैसा लगेगा कि कैसी औरत है, चूजी है, ये है, वो है, बहुत सारे अजम्पशंस ये अपने माइंड में क्रिएट कर रही है. I imagined the man giving me meaningful looks when I said it, and later perhaps he would discuss us with the other servant. मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उस आदमी को मैंने कहा कि ये शीट्स बदल दो, बेडशीट बदल दो, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, और जाके दूसरे सर्वेंट्स के साथ डिस्कस करेगा, जोक्स बनाएगा मेरे ऊपर. एंड ऑल ऑफ देम वुड मेक बॉडी जोक्स. और अच्छे जोक्स नहीं बनाएगा, बॉडी जोक्स बनाएगा, लाफेबल, खराब जोक्स, और जोर जोर से हंसेंगे मेरे बारे में. कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है वुमेन्स को लेके, लोग काफी ज्यादा जोक अराउंड करते. वो यही फीलिंग्स बता रही है. ही वेंट इनसाइड, आई कुड हियर. अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है कि वो अंदर गए वॉशरूम. आई कुड हियर साउंड्स ऑफ हिम विगरसली वॉशिंग हिज फेस. और मुझे आवाज आ रही है कि वो काफी रगड़ रगड़ के अपना चेहरा धो रहे हैं. आई ले बैक इन द चेयर. मैं चेयर में पीछे होकर आराम से बैठती हूँ.
full of lassitude, too tired even to examine all my emotions. मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं ये भी नहीं देख पा रही हूँ कि मुझे क्या क्या फील हो रहा है उस टाइम पे. Only one thought penetrating through the haze. अब सिर्फ मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है. I wish I was back home. मैं अपने घर पे होती. इतने देर में चाय आती है. The tea arrived. It smelled of kerosene. और उसमें से मुझे केरोसिन की स्मेल आ रही थी. So did the bread and butter. और उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड एंड बटर आया उसमें से भी. I was suddenly very hungry. और मुझे सडनली काफी भूख लगने लगा. केरोसिन का स्मेल से उसको अजीब लग रहा था, वो उसको नहीं खाती लेकिन उसको भूख लगने लगा. And had a sharp pang of longing for the sweets my mother had packed for me. और मुझे वो मीठा खाने का मन कर रहा था जो मेरी मदर ने मेरे लिए पैक किया था बिफोर कमिंग टू द हनीमून. वो बोलती है, आई हैव पुट सम स्वीट्स इन योर बैग. शी हैड सेड. मेरी मदर ने मुझे बोला था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ मीठा बैग में पैक कर दिया है. टर्निंग हर टायर्ड फेस टू माइन. उनका थका हुआ चेहरा मेरे तरफ बोल के घुमा के बोलती है. और मैं क्या रिप्लाई करती हूँ, रिडिक्यूलस, आई वुड हैव स्नैप्ड इवन अ डे अर्लियर. यू कांट गो ऑन अ हनीमून विद स्वीट्स इन योर सूटकेस. ये बोलती है कि हनीमून में जाने के लिए स्वीट्स का क्या जरूरत है, क्या काम है इसका. बट समथिंग forlorn इन हर फेस. लेकिन उनके फेस में एक ऐसा रिएक्शन था. एंड आईज हैड रेस्ट्रेन्ड मी. और उनकी आंखों में एक ऐसा एक्सप्रेशन था कि मैंने कुछ नहीं बोला और मैं साइलेंट रही और उन्होंने पैक किया और मैंने सुन लिया बस कि हाँ ये पैक उन्होंने किया है. Now I knew that my hunger for her sweets had something to do with the look on her face as well. अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा हंगर है, कहीं ना कहीं मुझे अब पता चल रहा है कि उनके फेस में वैसा लुक क्यों था, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे भूख लगेगा. Yet I felt shy. लेकिन मुझे अभी भी शर्म आ रही है. क्यों? Unwilling to open my suitcase and devour the sweets before him like a greedy school kid. कि वो क्या सोचेंगे. उनके आने से पहले मैंने सूटकेस खोल के एक छोटी बच्ची के तरह जो स्वीट्स के लिए पागल होती ग्रीडी वैसे खा रही हूँ, वो क्या सोचेंगे. मुझे ये सोच के काफी शाय फील हो रहा था और मैंने वो सूटकेस नहीं खोला स्वीट्स खाने के लिए. अब ये पास्ट इंसिडेंट के बारे में बात करती है जब इसको वो लड़के वाले देखने आए थे. वी आर लुकिंग फॉर अ गर्ल सिंपल बट सोफिस्टिकेटेड, हिज मदर्स हैड सेड. उनकी मदर ने एक ही लाइन बोला था, हम लोग लड़की देख रहे हैं अपने लड़के के लिए, सिंपल हो जो सोफिस्टिकेटेड हो. माई सन इज वर्किंग इन अ फॉरेन कंपनी. मेरा जो बेटा है वो एक फॉरेन कंपनी में काम करता है. हिज वाइफ मस्ट बी एबल टू एंटरटेन एंड मिक्स विद फॉरेनर्स. उसकी वाइफ को लोगों के साथ घुलने मिलने आना चाहिए, फॉरेनर्स के साथ एंटरटेन करने आना चाहिए. शी हैड मेड द वर्ड फॉरेनर्स साउंड लाइक मार्टियंस, सिंपल मार्टियंस. और वो फॉरेनर्स वर्ड ऐसे बता रही है कि हम किसी एलियन से मिलने वाले, मार्टियन से. ऐसा लग रहा है कि वो इंसान नहीं है, वो कोई अलग ही दुनिया में रहते हैं. ऐसा साउंड कर रहा था. सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड. वॉज आई दैट, आई वंडर्ड. ये वर्ड जब हम सुने, सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड, मैं सोच रही थी क्या मैं सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड हूं. इट हैड सीम्ड आई वॉज. मुझे लग रहा है कि मैं हूं, क्योंकि फॉर माई मदर हैड जॉयफुली टोल्ड मी दैट दे हैड अग्रीड टू अ प्रपोजल. क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि उन्होंने तुम्हारा रिश्ता पसंद कर लिया है, तुमको पसंद कर लिया है. तो हाँ, मैं सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड हूं. अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक वुमेन की आइडेंटिटी सामने वाले के प्रिजम्पशन पे, कि वो आपको कैसा दिख रहा है. अगर आप उसके लिए सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड हो तो आप सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड हो, जो कि एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है हमारे टेक्स्ट का. नो वन हैड आस्क्ड मी इफ आई हैड अग्रीड. किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं अग्रीड हूं कि नहीं. इट हैड बीन टेकन फॉर ग्रांटेड. It had taken it for granted I had taken it for granted myself. मैंने भी उस चीज को granted ले लिया. When suddenly a few days before the wedding I had gone to my father, stricken my doubts. और शादी के कुछ दिन पहले मैं अपने फादर के पास जाती हूँ और मैं अपना एक डाउट पूछती हूँ उनसे. Why? He had asked me again and again. वो पूछ रहे क्यों ऐसा फील कर रही हूँ. What will you do then? इन अ पैनिक आई हैड आस्क्ड माई सेल्फ व्हाट विल आई डू. वो पूछ रहे तुम उस टाइम पे क्या करोगी, और मैं घबराहट में खुद से पूछ रही हूँ मैं क्या करूंगी. एंड
आई हैड थॉट ऑफ 1,000 आंसर्स बट नन टू द क्वेश्चन। मेरे दिमाग में बहुत तरह के आंसर्स आ रहे हैं लेकिन मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है उस टाइम पे, कोई भी मेरा जवाब। What's wrong with him? I had nothing to say either when my father said quietly, I have two more daughters to be married. और मेरे फादर टेंस्ड होके बोलते हैं कि मेरी दो बेटियां और है शादी करने के लिए। इंडियन सेटिंग, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन डाला जा रहा है, तो इसके कारण ये खुद भी कुछ फिर नहीं बोलती है ज्यादा, और इसके मन के जो डाउट्स थे वो डाउट ही रह जाते हैं। Why are you so silent? He asked me, breaking into my thoughts. और मैं ये सब सोच रही थी और इतने देर में मेरे हस्बैंड आते हैं बाहर और वो मेरे से पूछते हैं कि इतना चुप क्यों हूँ। आई एम टायर्ड जस्ट अ लिटिल, और मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं, बस थोड़ा थकी हुई हूँ। आई स्माइल्ड एज आई सेड इट वॉज अ आई स्माइल्ड एज आई सेड इट, और मैंने थोड़ा सा स्माइल किया। अ पेनफुल ऑकवर्ड स्माइल, और वो स्माइल बहुत खुशी वाला स्माइल नहीं था, थोड़ा पेनफुल था, ऑकवर्ड सा स्माइल था। द स्माइल वन गिव्स अ डिस्टेंट अक्वेंटेंस, जो कि आप किसी अनजान व्यक्ति को देते हो, वैसा स्माइल था। वॉट इफ आई हैड सेड, नाउ दैट आई हैव हैड माई टी कैन आई गो होम? क्या होता अगर मैं ये कह देती अपने मन की बात कि चाय पी लिया है, क्या आप घर जा सकते हैं? क्या होता? बट ये ऐसा कहती नहीं है, पर हमें इसकी मन की बात भी पता चल रही है। अब ये बताती, ही केम क्लोजर, मेरे हस्बैंड मेरे क्लोज आए, looking concerned, and put his arm around me, but awkwardly, stiffly, so that we looked like two marionettes sitting side by side. वो आए और अपना हाथ मेरे कंधे पे रखते, लेकिन काफी awkwardly रख रहे। मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रेंजर रख रहा है, मुझे अपनापन नहीं फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई दो मैरियोनेट साइड बाय साइड बैठे, हंसों का जोड़ा। आई ट्राई टू मूव बट हिज होल्ड वॉज फर्म। मैं थोड़ा खसकने का ट्राई करती हूँ, बट उनका जो होल्ड है वो थोड़ा टाइट था, फर्म था। ही स्मेल्ट ऑफ स्वेट, और उनसे पसीने की स्मेल आ रही थी। थ्रू हिज ग्लासेस हिज आईज हैड अ सार्डोनिक ग्लीम दैट फ्राइटन मी, और वो चश्मा पहनते और उनके ग्लासेस से मुझे आंखों में उनकी एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही है जिससे मुझे डर लग रहा है। बेसिकली ये कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन इसके हस्बैंड को ये सारी फीलिंग्स नहीं दिख रही है। इट्स अ बिट स्टफी हियर इजंट इट, शी बोलती, थोड़ा घुटन घुटन सा लग रहा है ना। आई गॉट अप, ट्राइड टू साउंड कैजुअल, मैं उठती हूँ और कैजुअल साउंड कर रही हूँ, मैं अपना नर्वसनेस नहीं दिखाना चाह रही हूँ। लेट्स गो आउट टू द वरांडा, थोड़ा बाहर चलते हैं। आई वॉन्ट टू सी द सी, मुझे समुद्र देखना है। अनविलिंगली ही लेट मी गो, इसका हस्बैंड चाहता नहीं था, इसका हस्बैंड क्लोज आना चाहता था, इंटीमेट होना चाहता था, बट अनविलिंगली वो उसे जाने देता है और उसके पीछे पीछे वो जाता है। द सी वॉज फार अवे, अब समुद्र काफी दूर है। देर वॉज ओनली द ब्रीज एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ ड्राइड फिश, सिर्फ हवा आ रही है और हवा के साथ स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है सूखी हुई मछलियों का। द क्लिफ ऑन विच द बिल्डिंग स्टूड जूटेड आउट इन टू द सी, गिविंग द बीच बिलो अस अ प्राइवेट सेक्लूडेड एंड इन्वाइटिंग लुक। अगर वहां से देखे रूम के बिल्डिंग से तो सी काफी दूर है, लेकिन एक प्राइवेट एरिया के जैसा फील हो रहा है वहां पे, और सी आपको एक इनवाइटिंग लुक दे रहा है। द सैंड ग्लीम्ड ऑरेंज, यानी कि ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम है जिसके कारण सैंड ऑरेंज दिख रहा है। एंड इवन एज वी स्टूड देयर इन साइलेंस, और हम लोग वहां चुपचाप खड़े थे, द सन वेंट डाउन, धीरे धीरे पूरा सनसेट हो जाता है, स्विफ्टली एंड सडनली टेकिंग अस बाय सरप्राइज। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ स्लाइट हेडेक, मुझे हल्का सर दर्द हो रहा था, अ फेंट नॉजिया, जी घबरा रहा था। आई हैड अ ग्रेट लॉन्गिंग टू गो डाउन टू स्कफ माई बेयर टोज इन द स्टैंड, और मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं जाऊं और उस रेत में अपने पैर डालूं, टू पिक अप शेल्स एंड सिट ऑन द रॉक्स, लेटिंग द फ्रेंडली वेव्स क्लाइम अप माई बेयर लेग्स, शेल्स उठाऊं, रॉक्स पे बैठूं, पानी की लहरें मेरे पैरों को छुए। ही कुड स्विम, मेरे हस्बैंड स्विम कर सकते। आई थॉट एंड कॉल आउट टू मी इन अ लेजी एंड फ्रेंडली वे, और वो मुझे वहां से स्विम करते करते लेजी वे में मेरे को बुलाएंगे, और मैं एक फ्रेंडली सा स्माइल दूंगी उनको, वेव करूंगी। एंड ये चाहती थी वो, बट ऑल दिस वॉज इन द फ्यूचर, पॉसिबली, हो सकता है ऐसा हो, शायद फ्यूचर में, इफ एट ऑल। एंड एट प्रेजेंट वी वर नॉट फ्रेंड्स, और हम लोग अभी एक अनजान इंसान है, फ्रेंड्स भी नहीं है।
तो हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पे क्या चाहती है, क्लियर पता चल रहा है कि ये एक इमोशनल कनेक्शन पहले डेवलप करना चाहती है, ना कि डायरेक्टली इंटीमेट होना चाहती है। एंड एट प्रेजेंट वी वे नॉट फ्रेंड्स, यानी कि ये फ्रेंडशिप पहले डेवलप करना चाह रही है, नॉट एक्वेंटेंस इवन, बहुत ज्यादा जान पहचान भी नहीं है, बट ओनली अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। लेकिन हमारे पे एक टैग लगा हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ का। And the slightly glazed look in his eyes as he hummed a popular tune told me how unaware he was of everything, but of what was to happen between us. वो जिस तरह से गुनगुना रहे थे, मुझे समझ में आ गया कि ये कितने अनअवेयर है मेरी फीलिंग्स को लेके, बट इनको वो पता है कि हमारे बीच में क्या होने वाला है, दैट इज द फिजिकल इंटीमेसी, मेकिंग अस ट्रूली हस्बैंड एंड वाइफ, विच विल मेक अस ट्रूली द हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पे आपको सोसाइटी का स्टीरियोटिपिकल थॉट देखने को मिल रहा है। When we were, I thought again, not even acquainted with each other. जब हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, a month back, जब हम लोग एक दूसरे के बारे में सुने भी नहीं थे, ये उस टाइम के बारे में बात कर रही है। फिर ये बोलती है अचानक से वापस से अपने हस्बैंड को, लेट्स गो डाउन टू द सी, चलिए समुद्र के पास चलते हैं। आई सेड सडनली, नाउ ही सीम्ड सरप्राइज, वो बोलते अभी, लेट्स गो इन द मॉर्निंग, सुबह चलते हैं, क्योंकि इसका हस्बैंड नहीं जाना चाह रहा है, इसका हस्बैंड इंटीमेट होने जा रहा है, चाह रहा है, इम्पेशेंट है वो। यस बट बिफोर द मॉर्निंग देयर इज द नाइट, वाइफ बोल रही है हाँ लेकिन सुबह से पहले रात होता है, चलते हैं। आई क्वेल्ड एट द थॉट, ही सॉ द लुक ऑन माई फेस एंड स्माइल्ड एट मी, वो मेरे फेस को देख रहा है और स्माइल कर रहा है। इट्स गोइंग टू बी डार्क सून, लुक एट द वे, जल्दी अंधेरा हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं ना पाथ, जो रास्ता है वो भी थोड़ा जिगजैकी सा है, क्रेजली डाउन द हिल। और वो अपना आर्म मेरे वेस्ट के अराउंड पुट करते, ही पुट हिज आर्म अराउंड माई वेस्ट, यू डोंट रियली वॉन्ट टू गो डाउन डू यू, इंटीमेटली अपना हाथ वो उनके वेस्ट के पास लेके जाते हैं और वो रीअश्योर कर रहे हैं उससे, यू डोंट रियली वॉन्ट टू गो डाउन डू यू, क्या तुम सच में जाना चाहती हो। वो इशारा, एक इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे कि वी कुड डू अदर थिंग्स एज वेल, इट वॉज सेड इन माई ईयर, और वो उसके काफी क्लोज जाके ईयर में बोल रहे, ऑलमोस्ट अ विस्पर एंड इट सिकेंड मी। और ये चीज मुझे और घबराहट पैदा कर रही है, लाइक दोस फ्यूरिटिव टचेस एंड ग्लांसेस फ्रॉम फेसलेस नेमलेस मेन इन क्राउड्स, ऐसा लग रहा है मुझे कोई अनजान व्यक्ति भीड़ में छू रहा है, वैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। माई माइंड शीड लाइक अ फ्राइटेंड हॉर्स फ्रॉम द वर्ड्स, और मेरा दिमाग काफी डर गया, ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है ये, उस थॉट से कि अब क्या होने वाला है। कम ऑन इन, ही पुल्ड एट माई आर्म्स, और वो मेरे हाथों को खींचते हुए बोलते हैं, लविंगली हाथों को खींचते हुए बोलते, कम ऑन इन, अंदर चलते हैं, इट्स गेटिंग चिली, बाहर ठंड हो रही है। सो इट वॉज एंड डार्क एज वेल, हो रहा था ठंड और अंधेरा भी। वी हैड टू स्विच ऑन द लाइट्स, कमरे की लाइट्स ऑन की हमने रूम में। समवन हैड रिमूव द टी थिंग्स एंड मेड द बेड्स, किसी ने कमरे में आके हमारे पीछे से बेडशीट बना दिया था, चाय वाय का ग्लास ले गया था। आई थॉट विथ अ विस्टफुल पैंग ऑफ माई ओन नैरो बेड एट होम, और मैं वहां पे क्या सोच रही हूँ, अपने नैरो पतले से बेड के बारे में जो मेरे घर पे है, ऑफ हाउ आई वुड लाई ऑन इट, मैं कैसे उस पे लेट के कंफर्टेबली तरीके से रीड करती थी, लेट आवर्स इन द नाइट, लेट तक। आई फेल्ट अ कॉन्स्ट्रिक्शन इन माई थ्रोट, और मेरे को एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है उस टाइम पे, बेसिकली अ लॉन्गिंग फॉर ऑल द थिंग्स आई हैड लेफ्ट बिहाइंड मी, जो भी मैंने छोड़ा है उसके लिए। अ मेलेंकली दैट ऑलवेज असेल्स वन व्हेन अवे फ्रॉम होम एट दिस टाइम, जब भी कोई घर से दूर होता है तो जैसी फीलिंग आती है ना, वैसी फीलिंग आ रही है मुझे। ही सीम्ड अनअफेक्टेड बाय द एटमोस्फेयर, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीजों से, वो नोटिस भी नहीं कर रहे हैं, कोई मेलेंकली उनको मेरी फील नहीं हो रही है। एंड नॉइजली ओपनिंग हिज सूटकेस, और वो काफी आवाज करके अपना सूटकेस खोल रहे, टुक आउट सम क्लोथ्स एंड वेंट इनटू चेंज, कुछ कपड़े निकालते और चेंज करने चले जाते हैं। और मैं वहां पे कुछ मिनट शांति से बैठी हुई थी, देन फ्ल्यू टू द वरांडा, वापस से वरांडा में चली जाती हूँ, unwilling to admit even to myself that I didn't want to hear the intimate sounds that was seeping through the thin walls and flimsy door, क्योंकि रूम में मुझे आसपास के रूम से इंटीमेट साउंड्स आ रही थी,
और मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि मुझे नहीं वो चीज करना था अभी। I stood there, leaning against the wooden railings, tugging savagely at my hair. मैं वो वरांडा में wooden railings के बगल में खड़ी हुई थी, wishing I were somewhere, were anywhere but here. मैं कहीं पे भी होती पर यहाँ नहीं होती, मैं ये चाह रही थी. With a strange man in a strange room. Wishing that I could project myself into the future, gulf this intertwining time and become all at once an experienced mature woman. मैं ऐसा चाह रही थी कि मैं फ्यूचर में जाके जो एक्सपीरियंस एक मेच्योर्ड वुमेन को मिलता वो सारे एक्सपीरियंस लाके एक मेच्योर वुमेन के तरह यहाँ पे खड़ी रहूं. वन हु वुड नॉट टर्न अ हेयर एट एनीथिंग, जो कि कोई भी बहाना नहीं बनाएगी कोई भी चीज पे. जस्ट देन ही कॉल्ड आउट माई नेम, और उसी टाइम पे मुझे मेरे हस्बैंड का आवाज आता है, using it so familiarly with such a proprietorial air that I was startled. और वो मुझे उस हक से बुला रहे हैं कि मैं चौंक गई. A little angry, too reluctantly I went in. और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, और मैं अंदर जाती हूँ. Why don't you change? He asked me. वो बोलते कि चेंज कर लो. And it seemed to me that there was something insinuating in his tone, something eager and excited about him that put me off. और मुझे लग रहा था कि वो किसी जल्दबाजी में है काफी, जिससे मैं और ज्यादा पिस ऑफ हो रही थी. तो बेसिकली उसके फीलिंग्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, यही सारी बातें देखने को पता चल रही है हमें. आई चेंज थैंकफुली दैट माई नाइट ड्रेस वॉज मॉडेस्ट. मैंने कपड़े बदले एंड थैंकफुली मेरा नाइट ड्रेस जो था काफी मॉडेस्ट था. His eyes slid, यानी कि काफी seducing. His eyes slid over me briefly, and he was once again a nameless stranger. और वो मुझे देख रहे हैं, and for me once again he was just like a nameless stranger to me. Then they slipped away from me. I opened the door to the veranda. और मैं वापस से वरांडा में जा रही हूँ. और वो बोलते मेरे को, where are you going? Nowhere, just out there. वो बोलते come here. Let's stand out for a few minutes. I was pleading now. थोड़ा देर खड़े होते हैं ना बाहर, ये बोल रही है. नो कम है, ये बोलते नहीं इधर आओ. इरिटेट होके बोल रहे अब ये. अनविलिंगली आई टर्न्ड एंड वेंट टू हिम. बिना चाहे अनविलिंगली मैं मुड़ती हूँ और वापस जाती हूँ अंदर. एंड माई लेग्स एज हैवी एज लेड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर पत्थर का हो गया और चल नहीं पा रहा है. एंड सडनली हिज आर्म्स वेर अराउंड मी, हिज फेस क्लोज टू माइन, हिज रफ चिन स्क्रैपिंग हर्टिंग माई चीक. और वो मेरे इतने क्लोज है, उनका जो रफ फेस है वो मेरे चिन में ऐसा लग रहा है कि दुख रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है. His embrace was too sudden, too rough, और वो अचानक से मुझे embrace करने लगते. Too rough, and I wanted to scream. मैं चिल्लाना चाहती हूँ, to cry out, लेकिन नहीं चिल्ला पा रही हूँ. But somehow I knew that this was just between the two of us. लेकिन मुझे पता था ये जो भी हो रहा है हमारे बीच में हो रहा है. I turned my face away from him, और मैं अपना face उनसे मोड़ लेती हूँ, trying to escape so that the kiss he intended for my lips landed in the air. यहाँ पे दिख रहा है कि साफ साफ ये रिजेक्ट कर रही है, बट इनके हस्बैंड को नहीं समझ में आ रहा है. ही लेट मी गो एब्रप्टली, वो मुझे गुस्से से जाने देते. और उनके चेहरे में देयर वाज अ फुलिश एंग्री लुक ऑन हिज फेस. हिज ग्लासेस हैज फॉलन डाउन इन द स्ट्रगल. म्यूटली आई पिक्ड देम अप एंड गेव टू हिम. ही वाज साइलेंट व्हाइल ही whipped them and put them on. When he finally spoke, his voice was shrill. और काफी गुस्से वाली आवाज में वो बोलते हैं मुझे, What's this? Why are you behaving like this? ये क्या है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ये बोलती है like what? और मैं अपना आवाज काफी लो रख रही थी. ये कही वो इनोसेंट बच्चा नहीं होता जो बदमाशी कर देता है और फिर बोलता है मैंने क्या किया. वैसे अवॉइडिंग मी, डोंट यू थिंक आई हैवंट नोटिस, मेरे को तुम अवॉइड कर रही हो, तुमको क्या लग रहा है मैंने नोटिस नहीं किया. एवर सिंस वी केम हियर यू हैव बीन डूइंग इट, जब से आए हैं तब से तुम कर रही हो. ही एंडेड लेमली. नो आई हैव नॉट, आई एम नॉट, नहीं मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रही हूँ. डू यू थिंक आई एंजॉय फीलिंग दैट आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ ऑन यू, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है अपने आप को तुम पे फोर्स करके? क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना स्ट्रेंजली एक्ट कर रही हो? इसके हस्बैंड बोल रहे हैं. अब यहाँ पे गैस लाइटिंग मैनिपुलेटिंग ये यूज कर रहे हैं. तुम्हें क्या लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है अपने आप को तुम पे फोर्स करके? तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट देखने को मिल रहा है, विच हस्बैंड इज शोइंग दैट he is not liking to force himself on her, but वो करना चाह रहा है क्योंकि एक रिचुअल है, जैसे परफॉर्म करना ही है वैसे. I felt contrite at the sight of his bewildered face, but I had nothing to say.
मुझे ये एक्सप्रेशन उसके फेस में देख के काफी अजीब लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। फिर इसके हस्बैंड बोलते हैं, यू आर नॉट एन इनोसेंट लिटिल गर्ल, आर यू? तुम कोई अनजान बच्ची तो नहीं हो, छोटी बच्ची तो नहीं हो? यू नो। ये बोलती, यस आई डिड। नो, आई वॉज नॉट इनोसेंट, मैं इनोसेंट नहीं हूँ। इनफैक्ट जस्ट बिफोर द वेडिंग आई रेड अ बुक, शादी से पहले मैंने एक किताब पढ़ी है। नॉट फ्यूरिटिवली हाइडिंग इन डार्क कॉर्नर्स बट ओपनली। एकदम एक्साइटमेंट के साथ नहीं पढ़ी है, लेकिन अपने घर पे कहीं डार्क कॉर्नर्स पे छुप छुप के मैंने पढ़ा है। एंड इट वॉज माई मदर हु हैड ब्लश्ड लाइक अ गर्ल ऑन सीइंग इट। और वो जब मुझे वो किताब पढ़ते हुए देखती थी मेरी मदर, और वो मुझे देख के ब्लश करती थी। एज आई हैड रेड इट, इट स्ट्रेंज शिवर्स हैड गॉन ओवर मी। और मैं जैसे उसे पढ़ती थी मुझे एक शिवरिंग फील होती थी अपने बॉडी में। और वो लाइन जब आता, वो पार्ट आता, आई हैड थ्रोन द बुक अवे इन डिस्गस्ट, और मैं उस किताब को फेंक दे दी थी। What things I had thought one has to do just to propagate the human race. आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, ये थॉट सोच के डिस्गस्टिंग वे में आई वुड जस्ट थ्रो द बुक। आई स्टूड साइलेंट, एंग्री, हर्ट, क्रेस्ट फॉलन। मैं वहां पे चुपचाप उस कमरे में खड़ी हुई हूँ। ही वेटेड फॉर माई आंसर, वो मेरे से आंसर का वेट कर रहे हैं। वी scarcely know each other, I stammered at last। और मैं घबरा के हिचकिचा के बोलती हूँ, वी scarcely know each other। He seemed flabbergasted। और वो इस बात को सुन के काफी चौकन्ना दिख रहे। नो ईच अदर, व्हाट हैज दैट टू डू विद इट? आरंट वी मैरिड नाउ? उससे क्या मतलब है, हमारी शादी हो चुकी है। एंड हाउ वी विल स्टार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर इफ यू पुट ऑन सच अ टच मी नॉटिश एयर। अगर तुम मुझे अपने आप को छूने ही नहीं दोगी, क्लोज ही नहीं आने दोगी, तो जानेंगे कैसे एक दूसरे को? तो ये बोल रही है, आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट यू, आई वॉन्टेड टू से, मैं बोलना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाह रही हूँ। वॉट यू थिंक, वॉट यू फील एंड वाई यू अग्रीड टू मैरी मी। बट ये सब जानना चाहती हूँ, इमोशनल फीलिंग डेवलप करना चाहती हूँ। एंड वॉट डिड यू थिंक ऑफ us as we went through all those ceremonies together? Do you like the things I do and will laugh together at the same jokes, enjoy the same books? In and out ये जानना चाह रही है। And there were all those fears crouching in me. Would his breath smell? How would his breath smell? And were his feet huge and dirty with uncut toenails? नाखून काटता है कि नहीं? बहुत सारे ख्याल इसके मन में चल रहे होते। ये वैसे जानना चाहती है। I wanted to tell him how shy and frightened I was about exposing the mysteries of my body to him. ये बताना चाहती थी अपने हस्बैंड को कि इसको कितना शाय फील हो रहा है इंटीमेट होने में, बट ये नहीं बता पा रही है। हाँ, ये बताना चाहती है ये कितना होमसिक फील कर रही है, बट ये नहीं बता पा रही है। बट आई कुड से नन ऑफ दीज टू थिंग्स टू हिम, लेकिन मैं नहीं बता पा रही हूँ, ये कह रही है। इवन इफ आई डिड, आई थॉट लुकिंग एट हिज फेस ही वुड नॉट हियर मी। अगर मैं बता भी दूं तो क्या होगा? मुझे लग रहा है उसके चेहरे को देख के कि वो मुझे सुनेगा ही नहीं। ही वॉज ऑल कीड अप फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो पूरा तैयार है एक दूसरे एक्सपीरियंस के लिए, फिजिकल एक्सपीरियंस के लिए। एंड फॉर हिम अदर थिंग्स वुड हैव कम लेटर। और जो चीज मेरे लिए पहले आ रही है उसके लिए वो चीजें बाद में आएगी। While I wished to talk now, sitting up the whole night so that in the morning we could smile at each other like old friends, I stammered as I tried to explain. I flushed. ये बोल रही है कि मैं ये सोच रही थी कि टॉक नाउ, बैठ के हम लोग पूरी रात बात करेंगे और सुबह उन बातों पे हंसेंगे लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। आई स्टैमर्ड एंड आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, और मैं हिचकिचा के एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। आई ऑलमोस्ट बर्स्ट इनटू टीयर्स, और मैं ऑलमोस्ट रोने वाली हूँ उनके एंग्री फेस को देख के। द ईगर लुक इन हिज आईज हैज डाइड एंड आई स्पोक एंड फाइनली ही टर्न्ड अवे फ्रॉम मी। और वो जो ईगरनेस थी, इम्पेशंस था उनकी आंखों में, वो मर गया। और फाइनली जैसे ही मैं बोलती हूँ वो मुझसे मुंह घुमा लेते। वायलेंटली फ्लंग हिमसेल्फ ऑन अ बेड, और जाके अपने आप को बेड में लेट जाते गुस्से से। आई फेल्ट एज इफ आई हैड कमिटेड अ क्राइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया। एंड येट देयर वाज अ लाइट हार्टेड सेंस ऑफ स्केप। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैं इस सिचुएशन से बच गई हूँ। क्वाइटली आई वेंट टू बेड। मैं भी चुपचाप जाके अपने बेड पे वहीं पे बगल में लेट जाती हूँ उनके। ट्राइंग टू स्लीप, सोने का ट्राई कर रही हूँ। वाइल काउंटलेस इरोटिक इमेजेस came out of the pages of the book I had read and tortured my distracted mind। और वो इमेजेस जो मैंने बुक में पढ़े, डिस्क्रिप्शंस पढ़े, वो मेरे माइंड में आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा माइंड।
I lay wondering if I was that thing I had read about a frigid woman incapable of love. क्या मैं वो औरत हूँ जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, who is incapable of love. And what we would do if it I were so. और क्या करेंगे अगर मैं वो औरत हूँ तो. I imagined myself returning to my parents' home और मैं काफी चीजें सोच रही हूँ कि मैं कैसे अपने, ये मुझे छोड़ देंगे तो मैं कैसे अपने माँ बाप के घर जाऊंगी, शेम्ड फील करूंगी, रिजेक्टेड, जो हर एक लड़की को फील होता है. मेरे पेरेंट्स हमेशा के लिए डिस्ग्रेस्ड फील करेंगे. सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड आई टोल्ड माई सेल्फ. और वो लाइन्स मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार और सोच के मुझे चोकिंग फील हो रहा है. विथ माई ब्लैंकेट टू प्रिवेंट माई गर्गल ऑफ लाफ्टर फ्रॉम बींग हर्ट. बट हाउ कैन आई विथ अ मैन आई स्केर्सली नो. लेकिन मैं कैसे कर लूँ वो सब एक ऐसे आदमी के साथ जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ. इट्स नॉट फेयर, आई थॉट एंग्रीली. ये सही नहीं है. मुझे गुस्सा भी आ रहा है. इट्स इनडिसेंट. ही शुड हैव गिवन मी सम टाइम. उसे मुझे कुछ टाइम देना चाहिए था जानने के लिए. वॉट अ वे टू स्पेंड आवर हनीमून, आई थॉट. वॉट अ ग्रेट वे. ये सारी बातें वो सोच रही होती है. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस इज दैट आई मस्ट हैव ड्रिफ्टेड ऑफ इनटू द स्लीप. और ये सब सोचते सोचते वो सो गई होगी. बिकॉज आई वोक टू द डल बूमिंग साउंड ऑफ द सी कमिंग इन. क्योंकि मैं जब उठी तो एक बहुत ही डल सा बूमिंग सा साउंड आ रहा सी का मुझे. देयर वॉज स्केर्सली एनी पॉज. आई नोटेड ड्राउजली इन द थंडरिंग नॉइज. और मुझे पूरे होश में नहीं हूं मैं और मुझे कुछ आवाजें आ रही है. आई डिड नॉट वेक अप एट ऑल वंस. मैं एक बार में अचानक से होश में नहीं आई, बट ड्रिफ्टेड फॉर सम टाइम. थोड़ा इधर उधर हो रही हूँ, स्लीपिंग एंड वेकिंग, स्ट्रगलिंग आउट ऑफ अ कंफ्यूज्ड ड्रीम. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एक सपना देख रही हूँ जो कि काफी कंफ्यूजिंग है. दैट आई वॉज लाइंग देयर ऑन द बीच, कि मैं बीच के बगल में लेटी हुई हूँ. वेयर आई हैड सो लॉन्ग टू गो एंड दैट द वेव्स वर पाउंडिंग मी. जहां पे मैं कब से जाना चाह रही हूँ और वो वेव जो है वो मुझे छू रही है. देन आई वोक अप टू रियलाइज. और सडनली मेरे पूरी नींद खुलती है, मैं होश में आती हूँ और मुझे रियलाइज होता है दैट द साउंड ऑफ द सी वॉज रियल. वो सी का साउंड तो रियल है, बट आई वॉज ऑन अ बेड. मैं समुद्र के पास में नहीं हूँ, बेड में हूँ. एंड इट वॉज नॉट द सी दैट वॉज पाउंडिंग माई बॉडी. और वो लहरें नहीं है जो मेरी बॉडी को टच कर रही है, पाउंड कर रही है, बट ही, माई हस्बैंड. माई हस्बैंड इज पाउंडिंग अपॉन मी, फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन मी. आई वॉज टू फ्राइटन टू स्पीक. और जब तक मैं कुछ समझ पाती मैं काफी डरी हुई थी. टू फ्राइटन टू स्पीक. माई वॉइस वॉज स्ट्रैंगल्ड इन माई थ्रोट. मैं चीख नहीं पा रही हूँ, चिल्ला नहीं पा रही हूँ. वायलेंस और साइलेंस वाला थीम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है. आई पुट माई हैंड्स ऑन हिज चेस्ट टू पुश अवे, बट इट वॉज लाइक ट्राइंग टू मूव अ रॉक. वो इतना फोर्सफुली अपने आप को मेरे ऊपर रख रहे थे कि मैं उनको हिला भी नहीं पा रही थी. He put his hands, his lips on mine, and this time I could not move away. और मैं एक डेड बॉडी की तरह फील कर रही हूँ. There was no talk, no word between us. Just this relentless pounding. His movements had the same rhythm, the same violence as the movements of the sea. Yet I could have borne the battering of the sea better. ये बोल रही है कि वो जो एक्ट था, फिजिकल एक्ट, फोर्सफुल फिजिकल एक्ट जो इसके हस्बैंड कर रहे थे इसके साथ, शी वॉज नॉट एबल टू ग्रास्प इट. क्या हो रहा है इसके साथ. ये बोल रही कि एक बार तो वो समुद्र की लहरों को भी मैं बर्दाश्त कर लेती, बट मेरे हस्बैंड जिस तरह से मेरे साथ कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू बियर इट. आई कुड हैव borne द बैटरिंग ऑफ द सी बेटर, फॉर दैट वुड हर्ट बट नॉट ह्यूमिलिएट मी. वो मुझे, जो लहरें आती वो मुझे चोट पहुंचाती पर मुझे ह्यूमिलिएशन नहीं फील कराती. एट लास्ट, mercifully it was over, my body having helped him by some strange instinct beyond and outside me. And the cry I gave was not for the physical pain, but for the intrusion into my privacy. और जो मैं फील कर रही थी, जो चीखें थी मेरी, वो मेरी फिजिकल पेन की नहीं थी, but was about the intrusion into my privacy, the violation of my right to myself. I drew the sheets over myself and lay quietly. मैं चादर ओढ़ के सो जाती हूँ, afraid to move, thinking of nothing, my mind an absolute blank. और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरा दिमाग एकदम blank है. When sensation and feeling came back with a surge, और जब मुझे मेरा बॉडी महसूस होने लगा, my first thought was that I could not hear even the sea now. और अब वो जो समुद्र की आवाज मुझे आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही है.
I wondered why, till I realized that there was another sound drowning it. I looked at him. He was lying on his back, lungs flung apart, snoring loudly and steadily. So finally, यहाँ पे जो C है वो एक symbol है. C is the symbol of independence here. बट वो कह रही कि अब वो जो इंडिपेंडेंस था मेरा वो बचा ही नहीं, मेरा कुछ नहीं बचा. उसके जगह मुझे एक दूसरी आवाज आ रही है, पेट्रियार्की की आवाज, जो कि मेरे हस्बैंड की है, लाउडली स्नोरिंग. बिकॉज फाइनली ही कॉन्कर्ड, ही गॉट व्हाट ही वांटेड फॉर सो लॉन्ग, he did what he wanted to do so for long. And this is how my privacy was invaded. This is how the intrusion took place. This is how the marital rape took place. Because it was without my consent. She, thus the writer openly talks about कि कैसे marital rape होता है. What is marital rape? Anything without a consent, just because you are husband and wife, you are married, doesn't give you any right to do. पेट्रियार्कल सिस्टम देखने को मिल रहा है टेक्स्ट में हमें. दिस इज द व्हाट द होल स्टोरी इज अबाउट. यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे. यू कैन गेट दिस पीपीटी by joining my telegram link, and the telegram link is mentioned in my description. आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू विल गेट दिस पीडीएफ, दिस पीपीटी देयर, द होल पीपीटी. शशि देशपांडे की जो स्टोरी है ये ट्रॉमा, ह्यूमिलिएशन, एक यंग ब्राइड के ट्रॉमा और ह्यूमिलिएशन के बारे में बात करती है. ये हमें बताता है कि एक पेट्रियार्कल सेटअप में वुमेन का क्या रोल है. दैट इज व्हाट द होल टेक्स्ट टॉक्स अबाउट. Thus, to conclude, The Intrusion is a quiet but powerful short story that exposes the normalized violence embedded in marital relationship. Through restrained language and psychological depth, Deshpande gives voice to women's pain, showing that silence does not mean consent. Chup rehna is not consent, and that naming a violation is the first step towards healing. तो ये टेक्स्ट हमारा इस तरह से एंड होता है. I hope that you all have noted the important points. ये टेक्स्ट आप रीड करो, शॉर्ट स्टोरी है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट. इसमें आपको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको रीड करना है. एक बात ये ध्यान रखना है, हमें ये नहीं देखना है कि वो आदमी के लिए भी ये स्ट्रेंज थी, वो भी स्केयर फील कर रहा होगा, नहीं. इसे हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे क्योंकि ये उसी पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है. ओके. Okay, I hope this session is useful to you. Now I would like to end the session. Have a lovely day, learners. Goodbye.